Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So in today's video, we are going to study about friction force. First of all, we should know about that what is actually the friction mean. The friction is, we can say that friction is the force which opposes the relative motion. Here I am using the word relative motion because what we know is sometimes the surface on which the object is moving is also movable. So at that time, the correct word should be relative motion. Otherwise, in most of the textbooks, it is written that friction is the force which opposes the motion. It is correct when the one surface on which the object is moving, it is at rest. Okay, so friction is the force. If I write friction is the force, friction is the force which opposes the relative motion. Okay, by the diagram we can understand it better. So let us suppose if there is a box, if there is a box and it is situated on a surface. It is a surface, or we can say rough surface, so that the friction is there. If the surface is rough, then of course there is a friction will be there, and a box is located on the surface. A box is located on the surface. So if I'm not applying any force, if I'm not applying any force on this box, so will this box move automatically? No. The answer is no. The reason is when there is no force applied on this object, the object will stay at rest. And the reason for that is inertia. According to Newton's first law that tells about inertia, that the object, any object, doesn't change its original state or the previous state until or when we are applying any external force to it. जब तक हम इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ये अपनी वही सेम स्टेट में रहना चाहेगा जिसमें ये प्रेजेंट है. तो इसमें मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि जो ऑब्जेक्ट है ये, जिसका मास लेट अस सपोज इट इज एम, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक सरफेस के ऊपर रेस्ट पोजीशन में है. सो इफ आई एम नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स टू इट, द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. ठीक है. तो अब इसमें दो प्रोसेसेस आती है. ठीक है. दो प्रोसेसेस कौन सी आती है? लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल आई एम अप्लाइंग अ फोर्स हियर, दैट इज a force F is applied to the right direction. So according to the definition, friction is the force which opposes the relative motion. तो relative motion किसके बीच हो रहा है? सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, जहां पे जो रिजल्टेंट मोशन हो रही है वो राइट डायरेक्शन में हो रही है बाय द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस. तो अगर ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन द लेफ्ट डायरेक्शन. ये लेफ्ट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा. सो दैट्स हाउ द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स व्हेन इट इज मूविंग और द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ठीक. अब फ्रिक्शन की बात करते हैं कि फ्रिक्शन के क्या टाइप होते हैं और फ्रिक्शन क्यों लगता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रिक्शन का रीजन ये होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर रहता है, तो उनके बीच में जो ऑब्जेक्ट है और जो सरफेस है उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन जाता है. ठीक है. देर इज अ कंडीशन ऑफ इंटरलॉकिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस. बिकॉज ऑफ दैट द ऑब्जेक्ट डजंट टेंड टू मूव इटसेल्फ. ठीक है. वो उसके बीच में फोर्स लगा हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द ऑब्जेक्ट डजंट टेंड टू मूव इटसेल्फ. ठीक है. और दूसरा केस होता है जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आ जाता है. ठीक है. आफ्टर अ पॉइंट व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग. तो उस केस में क्या होता है कि फ्रिक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या फ्रिक्शन कम हो जाता है या फ्रिक्शन उतना ही रहता है, उस पर भी हम बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इन द टाइप ऑफ फ्रिक्शन वी स्टडी फर्स्ट, फर्स्ट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स.
in the type of frictions, type of friction, first one is static friction. As the word itself defining it, static friction means when the object is at rest or at the static position. Static मतलब जो चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ. When the object is at static position or the object is at rest, at that time the static friction acts. और static friction होता क्या है actually? Static friction is the amount of force which we apply to the object till the time the object is not moving. जब तक कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, यानी कि हम जितना थोड़ा बहुत फोर्स लगा पा रहे हैं, उस पे फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे जितना फोर्स हमने लगाया वो इक्वल हो जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन के. यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी एक डिफाइंड वैल्यू नहीं है. स्टैटिक फ्रिक्शन का एक डिफाइंड वैल्यू नहीं है. स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल फोर्स. जितना फोर्स हम ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे जब तक कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, वो फोर्स बोला जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. एग्जांपल से देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, और ये एक सरफेस के ऊपर है. अब मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूं, लेट अस सपोज 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, बट ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पे है. तो इस टाइम पे एक फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में. जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगे एक्ट करेगा, और उसका वैल्यू, ये फ्रिक्शन फोर्स है, उस टाइम पे उस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 20 न्यूटन, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं कर रहा है. सो दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एट दैट टाइम विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन एट दैट टाइम विल बी 20 न्यूटन. ठीक है. मान लीजिए मैंने फोर्स की वैल्यू को चेंज किया. इस टाइम पे मैंने फोर्स की वैल्यू को, जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मान लीजिए उसका वैल्यू मैंने 30 न्यूटन कर दिया. तो क्या होगा? अगर मैंने 30 न्यूटन किया और ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे मेरे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 न्यूटन हो जाएगा. तो आप पूछेंगे कि अगर मैं फोर्स को बढ़ाता जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो अ, वो फोर्स जा कहाँ रहा है? वो फोर्स बैलेंस कर रहा है किसके साथ? स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ बैलेंस कर रहा है. अच्छा, एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है. उस पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, और उस पॉइंट पे, यानी कि उस फोर्स पे, जितने फोर्स पे ऑब्जेक्ट जस्ट रेस्ट से मूवमेंट में आया है, उस फोर्स को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यानी कि उस लिमिट के बाद ऑब्जेक्ट ने, उस लिमिट ऑफ फोर्स के बाद ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, अपनी रेस्ट से मूवमेंट की स्टेट में आ गया है वो. तो उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं. वो एक एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन का ही पार्ट होता है. ठीक है. सो वी राइट इट लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द वैल्यू वेयर द स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम. स्टैटिक फ्रिक्शन जहां पे मैक्सिमम होता है, उस वैल्यू को ही हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं. एंड एक्चुअली द दैट्स हाउ वी कैन डिफाइन द स्टैटिक फ्रिक्शन एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है. अब इसमें मैं डिफाइन कर सकता हूं इसको. डिफाइन कैसे करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन को? स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज static friction is Fs less than equal to mu's time n. Mu's time n. Fs is less than equal to mu's time n. वहां पे mu's क्या चीज है? mu's है, mu's is the coefficient of static friction,
the coefficient of static friction, and that is between the object surface and the surface on which the object is moving, या फिर ऑब्जेक्ट जहां पे है, on which the object moves, जहां पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उनके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वही कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। और दूसरा यहाँ पे जो मैंने लिखा है एन, एन क्या होता है? एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, एन इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन द ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका नॉर्मल फोर्स हम डिसाइड करते हैं। इस केस के लिए अगर मैं एक केस अज्यूम करूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं एक केस अज्यूम करूं यहाँ पे, एन मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और इस ऑब्जेक्ट का मास एम है, तो इस पे इसका वेट लगेगा mg, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में इसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। तो उस केस के अंदर अपना स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? इस डायरेक्शन में अपना लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स in the y direction, in the y direction। अब y डायरेक्शन के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कहां पे कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कर रहा है। तो y डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो फिलहाल अपने केस में कौन से फोर्स लग रहा है? एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है जो कि पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, और एक mg जो कि क्या है, अपना वेट है उस ऑब्जेक्ट का, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस केस में n इक्वल्स टू mg हमें मिलता है, and that is why the static friction becomes fs less than equal to mu s time mg, ठीक है। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि हमेशा के लिए n इक्वल्स टू mg नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन से सरफेस पे किस पोजीशन में रखा गया है। अगर वो इंक्लाइन प्लेन पे है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन कुछ अलग होगा, हो सकता है। और अगर वो कोई अदर टाइप ऑफ सरफेस पे रखा है, कोई भी उसकी इंक्लिनेशन या फिर कुछ भी चेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग, या फिर कोई सर्कुलर पाथ पे है, जैसे भी है, हम उन केसेस को बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर वैसे कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अलग होगा। बट कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन लगता कैसे है? वो हमें पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट होता है अपना, उसके सरफेस के नॉर्मल लगता है, ठीक है। सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन को तो हमने डिफाइन कर दिया, क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन इज एफएस इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस टाइम एन। ये है मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है तो आप पूछ सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? जैसे कि मैंने पहले बताया था, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स, द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एट इट्स मैक्सिमम। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? दैट इज म्यूएस into n. Mu's into n can be the maximum value of static friction force. So this is the limiting friction force. This is the limiting friction force. तो इसको हम बोलेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने पास,
उसका जो मास है, इसी मैं डायग्राम की बात कर लेता हूं। मान लो कि इसका जो मास है वो 10 किलोग्राम है। ठीक है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेट अस सपोज 10 किलोग्राम है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका वैल्यू फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम दैट इट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अदरवाइज इट इज एक्चुअली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। For now, we are assuming it that it is 10 meter per second square. Okay. So for the given case, let us suppose the friction, the the coefficient of static friction for the given case is it is 0. Let us suppose it is 25, 0.25. Then what will be the static friction force? What will be the static friction force? So Fs will be less than equal to 0.25 into n का वैल्यू क्या होगा mg के इक्वल, सो mg is 10 into 10 न्यूटन। ठीक है। So Fs, the value of Fs will be 25 newtons. This is the value of Fs is less than or equal to 25 newtons. तो यानी कि 25 न्यूटन्स तक जो भी फोर्स लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में काउंट होगा। जो भी अप्लाइड फोर्स होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में काउंट होगा। ठीक है। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ एस मैक्स इक्वल टू 25 न्यूटन। 25 न्यूटन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, समझ आया। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बाद, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का मतलब है अगर मैंने 25 न्यूटन फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट विल बी टेंड टू मूव। अब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। अब मेन रोल आता है किसका, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का। अब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज द फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, when object starts moving. And in real life you will see that the kinetic friction is less than the static friction. Kinetic friction is less than the static friction. और उसका एक रीजन भी है, वेल डिफाइंड रीजन भी। आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है, क्या डिफरेंस है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, सेम ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, क्या डिफरेंस आ रहा है उसमें अगर आप सोचें तो। देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? Kinetic friction is the friction force when the object starts actually moving. It is also in the opposite direction. It is also opposes the relative motion. But the value of kinetic friction is less than the static friction. The reason is when the object is at rest, then the object has more time to be in the contact with the surface on which the object is lying. उसके पास इनफ टाइम है उस ऑब्जेक्ट को उस सरफेस के साथ मॉलिक्यूलर इंटरलॉकिंग करने के लिए, उसके जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको लगाने के लिए उन दोनों ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में इनफ टाइम है उसको। और उस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। मोशन में आएगा, देन मोशन में अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो द ऑब्जेक्ट विल गेट लेसर टाइम टू कॉन्टेक्ट टू बी इन द कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पे ऑब्जेक्ट के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, जो मॉलिक्यूलर कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, वो कम होगा। रीजन क्या है उसका कि कांटेक्ट इतना हो ही नहीं पा रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पे मूवमेंट में है। सो एट दैट टाइम, because of that the static friction force is greater as compared to kinetic friction। और हम उसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, आप देखेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस आता है। ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन एंड वन मोर थिंग, काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट वैल्यू फोर्स। वो स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह चेंज नहीं होता है।
काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स रहता है, एंड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज when the object when the object is actually when the object is actually moving on the surface. When the object is actually moving on the surface, then kinetic friction force is applicable. अब इस केस में मैं बात कर रहा हूं, अगर ये ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है, और ये इस सरफेस पे है, अब ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, उसके ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट में there will be a force, and that is denoted by Fk, that is denoted by Fk, और उस Fk का वैल्यू क्या है? The value of Fk is mu k times n. mu k times n लगभग सिमिलर इक्वेशन है स्टैटिक फ्रिक्शन के जैसा, वेयर mu k is, what is mu k there? Actually the mu k is coefficient of kinetic friction, the coefficient of kinetic friction, ये होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का इक्वेशन, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू हमें देता है। अब हम बात करते हैं इनके ग्राफ की, कि अगर हम अप्लाइड फोर्स के साथ ग्राफ बनाए फ्रिक्शन का तो कैसा बनेगा। ठीक है, मैं एक बनाता हूं ग्राफ, जिसमें ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस पे मैं फ्रिक्शन फोर्स को ले रहा हूं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं अप्लाइड फोर्स को ले रहा हूं, ठीक है। अप्लाइड फोर्स इज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और फ्रिक्शन को मैं ले रहा हूं, फ्रिक्शन को मैं ले रहा हूं वर्टिकल एक्सिस पे। So according to you, what should be the graph? First of all, there will be the graph between friction and applied force. So first of all, it will come to the static friction force. तो static friction force कैसा होना चाहिए? Static friction force के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है, that is Fs is less than or equal to mu s into n. So for that, it will be a straight line, और वो वैल्यू क्या होगी? प्रोपोर्शनल मैनर में बढ़ती जाएगी, जब तक कि उसका वैल्यू एक लिमिट तक ना पहुंच जाए, यानी कि उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ना पहुंच जाए। ये जो पॉइंट होगा जहां लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच गई, ठीक है, यहां पे मैं डिनोट भी कर देता हूं। आफ्टर दैट, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन तक अप्लाइड फोर्स पहुंच जाता है, तो उसके बाद जो फ्रिक्शन होता है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो हमें पता है कि इट इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो हमें उसके लिए एक ग्राफ में किंक आएगा, ठीक है। सो ग्राफ विल बी स्लाइटली, द फ्रिक्शन विल बी स्लाइटली लेस देन, ऐसा एक ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। नाउ if we define the portion of the graph, then this is the static portion,
स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें और इस पॉइंट की मैं बात करूं तो इट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसके आगे की जो बात करता हूं दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, that is kinetic friction. So that is how we can get the idea about static friction force and limiting friction and kinetic friction. अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसके कई टाइप हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में, और रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन कब लगता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पे रोल कर रहा होता है, मोशन में, रोलिंग मोशन में जब होता है, तो उस टाइम पे अपने जो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है, इट इज अ पार्ट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एक और फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा होता है कोई सरफेस पे, तो उस टाइम पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स लगता है। आई होप यू गुड द आइडिया। और हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई गाड़ी है वो रोड पे चल रही है, उस टाइम पे अगर वो सर्कुलर टर्न लेती है, अगर वो सर्कुलर टर्न लेती है तो उस टाइम पे फ्रिक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट है या फिर गाड़ी है वो कितना उसका वेलोसिटी हम रख सकते हैं जब वो सर्कुलर मोड पे गाड़ी चल रही होती है। या फिर दूसरा केस हम पढ़ेंगे जिसमें जो रोड है वो थोड़ी एलिवेटेड होगी सर्कुलर पाथ पे, जहां पे या फिर हम बैंकिंग रोड का कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग रोड, एट दैट टाइम यू विल सी दैट व्हाट द मैक्सिमम स्पीड वन द ऑब्जेक्ट कैन हैव, और द ऑप्टिमल स्पीड द ऑब्जेक्ट or the car or the vehicle can have at that time. Thank you so much for watching this video. I hope you liked it.